ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ اگر اس لائن کو آپ جتنے لوگ ہیں یاد رکھیے گا، اس پر چلیے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں سکتی، کیونکہ ہم اس لائن سے الگ ہو گئے ہیں، ہم اس لائن سے الگ ہو گئے ہیں۔ ہم نہیں مانتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم واقعی میں ہمارے لیے مستقیم کا راستہ ہے، اور اسی پر چلنے کے لیے اللہ رب العزت نے کہی ہے۔ امام صاحب روزانہ کہتے ہیں کہ رسول آخری رسول ہے، کوئی کہہ رہا ہم نہیں مانے گا۔ امام صاحب کیا کہتے ہیں کہ نبی آخر الزمان جو آئے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے جو صاف صاف کہہ رہا ہوں، کون نہیں مانیں گے صاحب؟ اللہ کو ہم نہیں مانیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں گئے، ہمارا جو راستہ وہی سب ہے۔ کہ وہ کیا نام ہے، 57 ملک ہیں حضرت فرما رہے ہیں جہاں پیٹرول نکلتا ہے، ڈیزل نکلتا ہے، یہ نکلتا ہے، وہ نکلتا ہے، ایسا جاتا ہے ویسا جاتا ہے۔ ارے وہ لوگ تو بمبئی بھی آتے ہیں عیاشی کرنے کے لیے، ان کے پاس پیسہ ہے، بمبئی بھی عیاشی کرنے، رسول کو بھول گئے، عیاشی کو یاد رکھا، بمبئی کو یاد رکھا، عیاشی کو چالو رکھا۔ آج کی حکومت ہے تیرے ریاض میں شراب خانے کھل گئے ہیں، جتنا چاہو شراب پیو، جتنا چاہو کباب کھاؤ، جتنا چاہو عیاشی کے راستے ہموار کر لو۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم مکہ جا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں مدینہ میں جا رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے نا وہاں ایک بتا رہے بنی اسرائیل سے، اور وہاں لڑائی ہو رہی ہے، اور غزہ میں یہ ہو رہا ہے، ہم رفح میں یہ ہو رہا ہے، ایسا وہ ہو رہا ہے۔ کون ہے بیوقوف؟ ایران اتنا چلا رہا ہے، اتنا کر کے ایک بھی حملہ نہیں اس نے کیا، پورا ہی کھڑا ہو گیا۔ اب وہاں لڑائی ہوئے شیعہ ہیں سنی، اب یہ ایک عجیب اور شکل پیدا ہو گئی کہ کیا ایسا وہ تو شیعہ ہے، وہ تو شیعہ ہے، ہم سنی ہم نہیں کھڑے ہوں گے، مسلمان چاہے جتنے بار دیجیے۔ یہ تو ہماری سوچ ہے، یہ تو ہماری فکر ہے۔ تو زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بند کرو، زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بند کر رہو، اس زمین کی پستیوں پر آسمان بند کر رہو۔ آپ کے سامنے انہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کس حالات میں گئے تھے، کتنے خراب حالات تھے، جن کی کوششوں سے، جن کی وسوسوں سے مدینے پہنچے تھے، اور جنگ بدر کی جب لڑائی ہوئی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا تھا؟ میرا خدا ہے، میرا نبی ہے۔ اور کیا تھا؟ کھجور کی ڈنڈی تھی، نبی نے ہمارے سارے لوگوں کو کھجور کی ڈنڈیاں دے دی، اور کہو لڑو، کہیں کہ کیسے لڑیں گے؟ انہوں نے کہا اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے، اے اللہ تم ہماری عزت کو بچائے رکھنا، تمہارا رسول جا رہا ہے جان دینے کے لیے، کہاں جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہیں گرا دے۔ کہاں فرشتوں کو بھیج رہے، ہم جنوں کو بھیج رہے، ہم ان کو بھیج رہے، ہم ان کو بھیج رہے، تمام طاقتیں تمہیں نے بھیجے، تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ لیکن ہماری بھی تو پوزیشن نہیں، نبی نے جو کہہ دیا وہ آخری ہے، اور ہم ہی فتح کر کے لوٹیں گے۔ ابھی ہم کہتے ہیں نا کہ چلیے جو معاملہ کھڑا ہوا ہم لوگ سب چلیں گے، امام صاحب کہیں گے ہم کو جمعہ کی نماز پڑھانا ہے، امام ہی صاحب کہیں گے کہ ہمیں جمعہ کی نماز پڑھانا ہے، آپ جائیے اشرف صاحب اور آپ کٹے کروائیے گا، آپ کو جب شہادت مل جائے گی تو ہم کو بتائیے، تب ہم مجاہد بنیں گے۔ ہماری شہادت کا انتظار کرتے رہیں گے اور ہمیں مجاہد بناتے رہیں گے، تو ہم مجاہد بنے اور یہ شہید ہونے کے لیے تیار نہیں، تو کون سے مسلمان ہیں؟ اور کیسا اسلام کا، کس طرح کے یہ مسلمان ہیں اور کس طریقے کے اسلام اتنے دور ہے، اتنے لوگ ہیں۔ ابھی ہم کہیں کہ جھنڈا لے کر کے تمہیں ہر قیمت پر امین آباد چل رہا ہے،
तो इसमें से मेरा ख्याल 10 आदमी भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार है। अरे वो खुद ही चले जाए, बड़े बहादुर आदमी है, उनके पास तो अय्यूबी है। तो मुझे नबी करीम अय्यूब के हवाले करते और खुद घर चले जाए, ये कैसे होगा? अभी आगे की बातें कर, हम मुझे बता दीजिए हिंदुस्तान इतना बड़ा है और कहने के सब 20%, यही कहा जा रहा है कि वो 80% है, हम 20% है। मोदी जी आए और कह दिया कि इसमें भी 80% हमने अलग कर दिया। और वह इस्लाम में कहा है, इमाम साहब कहा इस्लाम में लिखा है? एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद न कोई बंदा था और न कोई बंदा था। उस इस्लाम के मानने वाले, उस राह पर चलने वाले, उन्हीं का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमने हमारे नबी जी ने कहा कि 73 फिरके हो गए, इस चक्कर में ना रहना। 73 फिरके हो गए। अभी हमने बताया वो तो सुन्नी है, वो तो मुसलमान है, वो तो फला है, वो तो फला है, वो तो ये है, वो तो वहाबी है, तो वो तो फला है, वो तो बरेलवी है, वो तो अशरफी है, और वो फला है, वो फला है। इसी में हम लेकिन इस्लाम का नाम हम बुलंद नहीं। और अल्लाह ताला ने कहा कि जिसने इस्लाम का दामन छोड़ दिया वो जन्नत के करीब आने नहीं, जिसने रसूल का दामन छोड़ दिया जन्नत के करीब नहीं आने। आपने देखा ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी यानी सबसे बड़े नबी थे, सबसे बड़े लोग थे, और अल्लाह से जिम्मा दे दिया तुम सब ठीक कर दे। तो लोग अच्छा ठीक है ठीक कर दे, लेकिन अल्लाह ताला एक मरतबा ऐसा कर दीजिए कि वो अपना दीदार दिखा दीजिए, एक मरतबा हमको दीदार करा दीजिए अपना। अरे मूसा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, हमारा दीदार नहीं देख पाओगे। नहीं अल्लाह ये जितने हैं जितने बैठे हैं इनको मारने के लिए तैयार है। हमको नबी मानने के लिए, ये रसूल मानने के लिए, ये जितने लोग बैठे हैं कोई मानने के लिए तैयार है कि मूसा नबी है, मूसा रसूल है, क्योंकि हमें अल्लाह देखो। अच्छा चलो, तो 70 आदमी को लेके गए, 70 आदमी को लेके गए थे कोहे तूर पर, और कहा कि अल्लाह ने उसे समझा दो बात सही कर रहे, मेरी एक रोशनी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और नहीं उन्हें बुलाओ, नहीं हम उन्हें बुलाओ, नहीं हम उन्हें बुलाओ। अरे कहीं अल्लाह ताला ये कह रहा कि मेरी एक रोशनी नहीं तुम बर्दाश्त कर पाओगे, नहीं उन्हें बुलाओ। उनका ये 17 मर गए। अल्लाह का किसी ने दीदार नहीं किया, 17 खत्म हो। और जब तक लौटे तो यहाँ दूसरा कारखाना शुरू हो गया, यहाँ दूसरा कारखाना शुरू हो गया और एक नया बछड़ा खड़ा हो गया और कहा मैं अल्लाह हूँ, मैं ये हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं फला हूँ, मैं यह हूँ। मूसा साबरी बड़ा बदमाश था, उसने अपने को खुदा ऐलान कर दिया कि साहब मूसा मुझे बना के गए, मूसा कुछ नहीं है। हारून बेचारे सीधे साधे, उनकी भी बात नहीं मान रहा था, और उसने बछड़े को भगवान बना दिया और भगवान की पूजा शुरू हुई। जब लौट के आए तो देखा ये अल्लाह ताला का सबको काटो उठा करके, मेरा हुक्म है कि जितने बदमाश हो गए हैं सबको काट दो, किसी को मत छोड़ना, और सबसे कहते झुक जाओ। सबने अपने गले को झुकाते गए और सब लोग अपने की गर्दन कटवाते गए। मूसा ने फिर दुआ की, हे अल्लाह ताला जब ये सब मर जाएंगे, जब ये सब काट दिए जाए तो मैं क्या करूंगा? मुझे पैगंबर क्यों बनाया, मुझे रसूल क्यों बनाया? अच्छा रोक दो, अच्छा रोक दो। तो वो ये तो खैरियत है मियां, इमाम साहब खैरियत है। आप एक ऐसे जमात के मानने वाले हैं जो नूरे मोहम्मदी और रसूल अकरम के मानने वाले हैं, इसीलिए बच करके चल रहे हैं। और अगर कहीं मूसा की उम्मत होते तो आपकी ऐसी तैसी हो गई, वो मानने वाला नहीं।
वो तो अगर काट दो। इमाम मस्जिद जो है बहुत पान बाबा किया करते हैं। जब देखो जुम्मे में इधर का फतवा उधर का फतवा, इधर की बात और उधर की बात, जो चाहते हैं उड़ा जाते हैं। हमें कोई बात नहीं सुनना, इनको काट दो, तो कटवा देंगे। इतने बदमाश है, और वही मीडिया पीछे लगी है। कौन लोग? वही यहूदी है जो बदमाशी कर रहे हैं। जो बदमाशी कर रहे हैं वही ये यहूदी है जो बदमाशी पे उतरे हुए। यही अंसार है, यही यहूदी है, यही सब लोग हैं। ये मानने वाले तैयार, मानने वाले नहीं है, और न कोई रास्ते पर चलने वाला। और रास्ता तो आगे बता दी, हिंदुस्तान है, हमने कहा 20% है ना, हम इतने हैं, इतने लोग हैं, इतने लोग अगर कल आवाज दीजिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हम झंडा निकालेंगे और दिल्ली तक जाएंगे, देखते हैं कितने लोग हैं, देखते हैं कितने लोग हैं जो लखनऊ से झंडा उठाएंगे और दिल्ली तक का जाने की बात करेंगे। वो तो ऐसा कर देगा, वो तो ऐसा कर देगा, वो तो ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात पर उनको हम दिल से नहीं चाहते हैं, बल्कि उनके साथ भी हम दगाबाजी कर रहे हैं, उनके साथ भी हम दगाबाजी कर रहे हैं। अरे इसराइल में क्या हुआ था? इसराइल में तो यही हुआ था ना कि जीत लिया, हमारी हुकूमत पर गई, 900 साल तक हमने हुकूमत किया और कहा कि जरा टेस्ट कर लो, ये कितने मुसलमान हैं, हमें इनको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने लगे तो कहा एक को नहीं निकले। कहा क्या, कैसे मुसलमान है? क्या भाई साहब गोश्त खाने वाले मुसलमान। अब ये मुसलमान नहीं है, नबी के मानने वाले नहीं है, भाई क्या गोश्त खाने वाले मुसलमान है, काट दो, फाड़ कर देंगे। जो पैसे खाने वाले मुसलमान, इनको काट दो, अब हमें नहीं जरूरत नहीं है, काट दिए गए, खत्म हो गई। आज तक हम पैदल दौड़ रहे हैं, खिसकता मुबालिक है, 100 मुबालिक है, और फला मुबालिक है, ये मुबालिक है। अरे भाई पूछो सऊदिया अरबिया से कि तुम इतने बड़े हो, इतने बड़े ठेकेदार बैठे, क्यों नहीं इस्लाम को बचाने के लिए इसराइल के मुकाबले में खड़े हो जाते? तुम खड़े हो जाओ और हम, तुम्हारी बंदूक नहीं निकलेगी, हमारी बंदूक निकल आएगी, तुम्हारे तोपखाने नहीं खुलेंगे, हमारे तोपखाने निकल आएंगे, और हम जब तक कामयाबी नहीं कर लेंगे उस वक्त वहां से वापस लेंगे। लेकिन तुम कैसे मुसलमान हो, नहीं निकलने के तैयार? तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं आपसे कि ये सारे झंझट उठा के दो बात याद रखिए, दो बात याद रखिए, आपकी फतेह है, फतेह है, फतेह है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं। एक तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लीजिए कि सब कुछ हो जाएगा, मैं रब्बे करीम की रस्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। दूसरे, जिस नबी को आपने मेरे ऊपर भेजा है वो मेरे लिए रहमतुल आलमीन है, वो रहमत आलम है। आदम से पहले भी वो है और आदम के बाद में, और जब तक क़यामत नहीं आएगी, और उसके बाद भी जब तक हमारी शफाअत नहीं करा देंगे, नबी ये करीम हमारे साथ रहेंगे। जब शफाअत का दावा कर रहे हैं तो मरने के लिए आप तैयार होंगे। जब हमारी शफाअत का दावा कर दिया कि हम बचाएंगे, जन्नत में ले जाएंगे, अरे मुझे तो जाने दिए, पीर दरसगी ने हमारे कहा कि अरे हमारे दामन तक दूर जाएगा, हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा मुरीद नहीं है। वो तो नबी, वो तो रसूल है हमारा है, कहते हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएगा? इसलिए कि हमारे मुरीद जब चले जाएंगे अंदर, तब हम आखिरी आदमी होंगे, तब हम अंदर जाएंगे। तो जब ऐसे ऐसे पीर हमारे पास है, अजमेर शरीफ चले जाइए, किसी और चले जाए, यहाँ चले जाएंगे, वो सब ठेका लिए बैठे हैं, लेके हम ये बुजदिल निकल गए।
تو اگر ہم ان ولیوں کو، ان نبیوں کو اور خدا کے رسیوں کو تھامے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو ہمیں برباد کر سکے، ہمیں نابود کرے۔ تو میں یہ کہہ کر کے آپ سے جدا ہو رہا ہے، اے طاہر لاہوتی، اے طاہر لاہوتی، اس رشتے موت اچھی، اے طاہر لاہوتی، اس رشتے موت اچھی، جس رشتے آتی ہو پرواز میں خدا ہی خدا حافظ لیا ہو۔